हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। कैन यू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू? एसएसबी इंटरव्यू के लिए मतलब इंटरव्यू तो पूरे प्रकरण को ही बोलते हैं, परंतु आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑन वन इंटरव्यू। कैन यू प्रिपेयर फॉर इट? एक्चुअली मैंने कल एक लड़के का इंटरव्यू लिया, मॉक इंटरव्यू। वो इतना ना ज़्यादा प्रिपेयर्ड था कि वो बेचारा बाय द टाइम द प्रेशर डेवलप्ड ही ऑलमोस्ट स्टार्टेड शिवरिंग। एंड द रीज़न वाई he was shivering is because he was too much prepared or ill prepared. When I'm saying you are ill prepared for interview, it means that you are trying to remember the questions and you are trying to give a prepared answer to it. And I'm telling you, it is so evidently evident. आप एक चीज़ को समझिए कि ये सवाल कोई आउट ऑफ द बॉक्स या अवे फ्रॉम द सिलेबस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज क्वेश्चंस आर ऑल रिलेटेड टू यू एंड योर पर्सनैलिटी। व्हाट ऑल थिंग्स इज द इंटरव्यूअर आस्किंग यू? ही इज आस्किंग यू अबाउट योर एजुकेशन। हाउ मच मार्क्स डिड यू गेट in 10th, how much marks did you get in 12th, how much marks you did in graduation, why did you study this subject, what was your aim, what is your aim, whom did you like as a teacher, whom you did not like as a teacher, what sports did you play, who are your best friends. Now what are these questions? These questions are your part of growing up. This has been your part of growing, and I don't think you need to prepare for it. Moment you try to manipulate a question in your mind and then keep a ready-made answer for it, your mind will stay hooked on to that answer and you will somehow try to bring the interview to that answer, and for that you will be trying to bring it to there and it will be visible. That is part one. Part two of this is that what will happen also is that since you're trying to remember something, आप कुछ याद करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि यार ये वाला सवाल तो है नहीं, अच्छा ये सवाल आने वाला था तो ये नहीं आया। आपका ध्यान जो है इंटरव्यूअर कम, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, खट 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 सोच रहा है। दैट इज वाई आई से कि यू विल स्टे इन योर कॉन्शियस माइंड। आप अपने कॉन्शियस माइंड से जब रिप्लाईज देंगे तो दे विल बिकम लाइक एन आंसर टू अ क्वेश्चन। एन आंसर टू अ क्वेश्चन डज नॉट रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी. It does not let you go to your unconscious mind. Since your mind is so proactively thinking, so you're not allowing the interviewer to reach your unconscious mind, and since you're not allowing him to reach to your unconscious mind, your answers are so monotonous and boring that after some time interviewer will lose interest in you. Many people tell me कि सर उसने तो मेरे से पूछा ही नहीं CIQ, ये CIQ 2 तो पूछा ही नहीं फैमिली का। वो इसलिए नहीं पूछा कि आपने CIQ 1 में इतना ना ज़्यादा उसको मोनोटोनस और प्रिपेयर्ड आंसर्स दे दिए कि ही लिटरली गिव अप ऑन यू, एंड देयरफॉर ही डिडंट आस्क, ही जस्ट डिड pass the time. He asked you about either and food and comfort and bed and all this, and then he told you to go. He will be only interested in you if you allow him to, or her to, whoever is the interviewer, to go to your unconscious mind in a natural manner. When he is asking a question and if you're flowing with the answers and you're genuinely going and telling from where, like if I'm asking you how was your marks in 10th standard, so automatically your mind will switch to 10th. And you'll remember that mark sheet. And then what will happen? Then you will go to 12th and you'll remember that mark sheet.
And then the question is ki which subjects did you choose? Then you will start thinking, why did I choose? Most of the time you chose science because everyone was choosing. That is the reality. So then you will say कि I used to love science. अब यहाँ पे बोल गए आप झूठ. अब बोल गए बिकॉज आप लव साइंस वाइंस कुछ नहीं थे, आपको पता नहीं था करना क्या है. क्लास में सब लोग साइंस ले रहे थे, घर वालों ने बोला तुम आईआईटी कर लेना बेटा. तो आपको आईआईटी का ना कोई अंदाज़ा था, ना कोई मन था, ना कुछ वो था, पर अब घर वालों ने बोला तो कर दिया. बट यहाँ पे आप बोल गए कि विच पार्ट ऑफ साइंस डू यू लाइक द मोस्ट. अब क्या करेंगे आप? तो आप बोलेंगे सर आई लाइक केमिस्ट्री. विच केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. अब आप घुसते जा रहे हैं. अब यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो है अनकॉन्शियस में जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने वो किया ही नहीं था. तो अब क्या करेंगे आप कुछ कंकॉक्ट करेंगे आंसर. सर आई लाइक फिजिक्स. Sir, I like physics more, but mathematics. Acha, tell me then this. So what will happen is कि moment it's not a natural answer. Moment it is an answer fabricated, it doesn't let you go to your unconscious mind. Or even if it allows, then it takes you to the lie that you have told. And then you go into defensive. When you go into defensive, to that what I may also call as you are now playing on the back foot. Now it is on the bowler. आप बैक फुट में खड़े हो, अब बॉलर पे डिपेंड करता है, वो देगा फिर बीमर. तो इंटरव्यूअर भी बीमर दे देगा. अच्छा, इंटरव्यूअर क्या करते हैं ना, वो क्वेश्चंस की इतने इंटरव्यू ले रहे हैं, इतना प्रैक्टिस है, तो उनको ना आपके आंसर्स याद रहते हैं, टिकल पॉइंट्स थोड़े थोड़े याद रहेंगे. और जैसे ही आपका वहाँ से कंट्रडिक्शन होगा नीचे कहीं और आंसर देते समय, तो पूछ देगा वो वाला, बट यू सेड योर फेवरेट सब्जेक्ट इज chemistry, how did you land up studying physics honors? No sir, actually my favorite subject is chemistry, but I like physics more. क्या बात हुई? तो आप अपने ही सवालों के जवाबों में फंसते चले जाएंगे. एट द सेम टाइम अगर आप ये रिप्लाई देते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये रिप्लाई देना है आपको, आपका रिप्लाई डेफिनेटली मेरे रिप्लाई से अलग होगा. मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि सर आई चोज साइंस बिकॉज सर एट दैट टाइम everyone in my school was choosing science and I thought it will give a better career perspective. My parents also decided. It's a natural, honest answer. आपने झूठ बोला ही नहीं है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं. एडवांटेज, एक आपको बहुत अच्छी कहानी नहीं, एक बहुत अच्छी सेइंग है, मैं यहाँ पे आपको सुना दूँ, बहुत रेलेवेंट होगी, कि द एडवांटेज ऑफ टेलिंग द ट्रुथ इज that you don't have to remember it. आपने सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा, आपको याद ही नहीं रखना आपने बोला क्या था. झूठ बोलने का घाटा क्या कि आपको याद होना चाहिए कि आपने बोला क्या था, बिकॉज इंटरव्यूअर तो वही करेक्शन, वही आपका कोरिलेशन लगाने के लिए बैठा हुआ है. सो सहज आंसर दीजिए. अगर आप मान लीजिए इसमें ये आंसर देते हैं कि सर आई चूज साइंस बिकॉज इट गिव्स मी मोर अपॉर्चुनिटीज टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस, विच इज द ट्रुथ. और अगर सच में ऐसा है तो लॉजिक है, साइंस वाइंस से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो ज़्यादा वो मिल रहे हैं चांसेस. मेरे को TES भी मिल रहा है, नेवी 10+2 भी मिल रहा है, TGC भी मिल रहा है, SSC भी मिल रहा है, इसलिए मैंने साइंस लिया. तो वो आपकी कैंडिडेचर को सुदृढ़ करता है, परंतु तभी अगर वो सच में नेचुरल रीजन है. तो एक एकेडमी से एक बच्चे ने इंटरव्यू करवाया था किसी से, तो उन्होंने एक रिपोर्ट बना के उसको दिया होगा, तो वो बच्चे ने मेरे को वो रिपोर्ट भेजा. बच्चे ने नहीं, बच्चे के पेरेंट्स ने भेजा कि सर ये रिपोर्ट दिया इन्होंने, और प्रॉपर जैसे कि हम लोग रिपोर्ट लिखते थे, हालांकि देना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी गिवन एंड इट शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, बट एनीवे किसी ने भेजा. तो मैंने जब उसका प्रोफाइल देखा तो मेरे को लगा कि ये बच्चा तो 120 नंबर लाना चाहिए. तो उन्होंने जिस हिसाब से उसका टिक पैटर्न बनाया था, तो उन्होंने 95 क्लियर कर दिया था उस कैंडिडेट को. परंतु जब उसके पेरेंट्स को लगा नहीं कि यार ये ऐसे तो लग नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है, तो दे अप्रोच्ड मी. तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आई विल टेक द इंटरव्यू. तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया और फिर मैंने उनके पेरेंट को फीडबैक दिया कि ये बहुत दूर हैं अभी,
अभी इनको बहुत मेहनत करनी है इस क्षेत्र में ऐसे 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 ऐसे। एंड फिर मैंने बच्चे को भी समझाया और बच्चा भी समझ गया। तो क्या होता है कि ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, फ्रॉम द इंटरव्यूअर साइड ऑल्सो, कि आप सही फीडबैक दें। आपको खुश करने के लिए मैं बोल दूं कि नहीं आप तो रिकमेंड होने जा रहे हैं, और आपको ये बताओ ही ना कि आपको यहाँ 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 बहुत मेहनत की ज़रूरत है और आप इसको ऐसे कीजिए और आप इसको ऐसे मेहनत कीजिए और इसको ऐसे मेहनत कीजिए, देन आई एम नॉट डूइंग माई जॉब फ्रैंकली स्पीकिंग। इट्स माई जॉब दैट आई शुड टेल यू। अभी आज की डेट में तो ऐसा हो गया कि लोग 700 रुपये में इंटरव्यू कर रहे हैं, पर वो इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल वाला इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं तो, बट दैट इज गोइंग टू अफेक्ट यू। दैट्स व्हाई यू शुड बी वेरी केयरफुल हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू। इज ही हैविंग दैट कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, और ही जस्ट ठीक है बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं। आप इसका ख्याल जरूर रखिएगा। ये बात तो चलो इधर से उधर से निकल गई। सो अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर कि एनीथिंग विच इज़ कमिंग सो चीप, 700 रुपये में कोई इंटरव्यू कर रहा है, ऑफ कोर्स देन यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। नीम हकीम खतरे जान, सुना होगा आपने। तो अब हम बात कर रहे थे कि इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करें, वो एकेडमिक इंटरव्यू के लिए सही है। मान लीजिए आप कहीं एकेडमिक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पे आपसे एकेडमिक सवाल पूछे जाएंगे, आपको एकेडमिकली अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, परंतु ये एकेडमिक तो है नहीं, ये तो आपके बारे में है। परंतु आप क्या तैयारी कर सकते हैं? आप अपने आप से मिल सकते हैं। मीट योर सेल्फ। इफ यू मीट योर सेल्फ, इफ यू नो योर सेल्फ, and if you know yourself to the core, you are preparing well for the interview. Another thing that you can do is you can be comfortable with yourself. Being comfortable with yourself will prepare you well for the interview, because if you're comfortable with yourself, you will not find reasons to justify. You are what you are. If you get that comfort level with yourself to a very large extent, your interview will be ready. So this is the way you can prepare for the interview. In addition to that, many people think that this interview is about general awareness और मैं जनरल नॉलेज में बता रहा हूँ। इंटरव्यूअर कभी कभी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, आपसे जीके पूछेगा ही नहीं, बिकॉज उसको जीके से मतलब नहीं है, उसको आपके व्यक्तित्व से मतलब है। तो वो जीके पूछ देता है एंड में, हालांकि एंड में एट द एंड ऑफ द प्रोफाइल, हालांकि इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी CIQ, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी जियोपॉलिटिकल व्यूज जानने की कोशिश की जाती है। इट हैज़ वेरी लेस बियरिंग ऑन योर पर्सनैलिटी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट योर रीजनिंग एबिलिटी इज गुड, यू आर अ पर्सन हु इज रीडिंग, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, इट गोज ऑन दैट डायरेक्शन। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रिपेयर वेल योर geopolitical knowledge. You can prepare the topics of the relevance. You are studying economics, so you should know more about economics. Naturally, you are a person who is working in the software field. You should be very conversant and happy about it. You're a physicist, that kind of a knowledge. In addition, what is geopolitical development? What are the general topics of interest which are happening around you? Today, yesterday, that kind of, and around you within the same time frame. Those things you can prepare, but the most important preparation will be knowing yourself to the core, being very comfortable with yourself. You might have got a compartment in 12th, no problem. You'll be recommended. Provided you are comfortable with yourself and you have made a pact with yourself, you've realized the mistake and you've moved on. If that stays in you like a hook, which you are pulling yourself, interview will pull that same hook. You don't give him that chance.
Why did you get compartment in 12th? Simple answer can be, sir, it is my huge mistake. I just couldn't cope up with the level of mathematics in 12th, despite trying my best. What else did you try? Sir, I tried this, I tried that, in case you have actually tried. So not knowing a high funda mathematics or differentiations or integrations or permutations and all is not a crime. Crime is you not being comfortable with yourself. बहुत सारी बातें हैं, अनंत हैं, बातें करते चले जाएंगे आपसे, तो फिर एक और टॉपिक लेके आएंगे इसी टॉपिक पे। बट आप एक चीज़ समझिए, एकेडमिक इंटरव्यू नहीं है। आप कुछ याद मत कीजिए, अपने माइंड को फ्री रखिए, स्वच्छंद होकर उत्तर दीजिए। इंटरव्यूअर को आपसे बात करने में मज़ा आएगा, इंटरव्यू नॉर्मल होगा, नेचुरल होगा। आप जहाँ प्रिपेयर्ड तरीके से और ये फेक गुरुज को सुन के देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती, एक चीज़ याद रखिए। मैं अभी, मेरे एक बच्चे ने मुझसे कनेक्ट किया था मेरी कम्युनिटी में, व्हाट्सएप कम्युनिटी में। अगर आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे। यूट्यूब पे लिंक है, इंस्टाग्राम पे लिंक है। बहुत अच्छी बातें होती हैं वहाँ पे। जनरली SSB कब एग्ज़ाम आ रहा है, कभी कभी कोई थीम डिस्कस हो जाता है। तो उसमें उस लड़के का बड़ा जेन्युइन सवाल था कि सर अगर कोई नेगेटिव पिक्चर है तो क्या हम कैरेक्टर बाहर से ला सकते हैं क्या? तो और कह रहा है कि सर एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट साहब ने कहीं किसी वीडियो में बोला है। तो मैंने भाई इसको इतना ही बोला है कि सलमान खान की पिक्चर में सलमान अच्छा नहीं लग रहा है तो शाहरुख खान को ले आओगे क्या? हाउ कैन यू चेंज द कैरेक्टर एंड ब्रिंग समवन फ्रॉम आउटसाइड? आप तो पूरी साइको एनालिटिक थ्योरी की ही ऐसी तैसी कर रहे हो। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैन यू ब्रिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम आउटसाइड। उस पर हम बाद में बात करेंगे। आप अभी इसकी तैयारी करें, इसको समझें, बताएं मुझे कैसा था ये वीडियो। शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी मदद करें इस मामले में। बहुत जेन्युइन वीडियोस बनाता हूँ। आपको पता है मेरा एक वीडियो इन सो कॉल्ड फेक गुरुज ने ऑलरेडी गिरा दिया है, तो इसको थोड़ा मैं संभाल के चल रहा हूँ। आई एम नॉट शेयरिंग एनीथिंग विद एनीवन, होपफुली। थैंक यू। जय हिंद।